Very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So as you know that from the previous few class we have studied the chapter that is introduction part, that is statistics for economics. So in the last class we have discussed about what is the meaning of the statistics in economics, origin and the growth of the statistics meaning, the meaning of statistics in the singular sense or in the plural sense, characteristics of the statistics in the plural sense, right, and the scope and subject matter of the statistics. Till here we have already discussed in the last class, right? So in today's class we are going to start with the functions of the statistics. So what are the different functions of the statistics? We will deal with this class, okay? So let's start with the topic, that is functions of statistics. Functions of statistics. Okay. So statistics perform very important functions to conduct the statistical inquiry. Okay. So जो statistics है वो क्या करता है, बहुत important functions को play करता है to conduct a statistical inquiry, right? So what are the different functions? So the first one is it help in understanding the economic problem. So first is it helps in understanding economic problem. क्या हेल्प करता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में ये हेल्प करता है. So statistic is an indispensable tool for an economist that helps to understand the economic problem. ठीक है? So it plays very important role किसी भी इकोनॉमिक्स के लिए, जिससे वो क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकता है. सो यूजिंग इट्स वेरियस मेथड्स, वो अपने बहुत सारे मेथड्स को यूज़ करके, इसके वेरियस मेथड, एफर्ट इज मेड टू फाइंड द कॉजेज बिहाइंड इट. एफर्ट्स किया जाता है सो बिहाइंड दी कॉजेज बिहाइंड इट, ठीक है, कि उसके पीछे क्या क्या ऐसे कॉजेज हैं. सो विद द हेल्प ऑफ द क्वांटिटेटिव फैक्ट्स, जो भी इसकी क्वांटिटेटिव फैक्ट्स है, दैट मीन्स which is given in the numerical terms. Numerical terms में उसमें सारी information दी रहती है and we have to find out the solution of the economic problem, right? Now the second one is presentation of the fact in the definite form. Presentation of facts in जो भी फैक्ट्स हैं उनका प्रेजेंटेशन कैसे होता है, एक डेफिनेट फॉर्म में होता है, राइट? सो स्टैटिस्टिक्स इनेबल एंड इकोनॉमिक्स टू प्रेजेंट इकोनॉमिक फैक्ट इन अ प्रिसाइज एंड डेफिनेट, एक प्रिसाइज और डेफिनेट फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है. दैट हेल्प इन प्रॉपर कॉम्प्रीहेंशन ऑफ व्हाट इज गिवन, जो ये अंडरस्टैंड कराता है कि व्हाट इज गिवन, जो भी स्टेटेड है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कैसे दे रखी है, उसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं. सो व्हेन इकोनॉमिक फैक्ट्स आर एक्सप्रेस इन स्टैटिस्टिकल टर्म्स, जो भी इकोनॉमिक फैक्ट हैं वो जब स्टैटिस्टिकल टर्म्स में दिए रहते हैं, दे बिकम एग्जैक्ट, वो क्या हो जाते हैं, एग्जैक्ट हो जाते हैं. सो एग्जैक्ट फैक्ट्स आर मोर कन्विंसिंग दैन दी वेग स्टेटमेंट. ठीक है, जो एग्जैक्ट है वो क्या होता है, वो स्टेटमेंट इज बिकम क्वाइट ईजियर टू अंडरस्टैंड जो वेग स्टेटमेंट. So for instance, saying that 300 people died in the recent earthquake in Kashmir is more factual and thus statistical data, whereas saying 100 of people died is not a statistical data. ठीक है, ये कहना और ये किसी को एक्सप्लेन करना कि 300 people are dead, कश्मीर में अर्थक्वेक आया था, उससे 300 people डेथ हुए,
अब ये एक्सप्लेन करना कि हंड्रेड्स ऑफ द पीपल डेथ इन दी अर्थक्वेक इन बेसिकली इन दी कश्मीर, तो ये क्या होगा, स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं है क्योंकि इट इज़ नॉट एक्सप्रेस इन दी क्वांटिटेटिव टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिक हेल्प इन statistics helps in condensing mass data into a few numeric measures. Now the next function of statistics is it establishes the relation between the factors. So it establishes between factors, okay, one word is missing. It establishes relation between factors, ठीक है। ये जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उनके बीच में ये क्या करता है, रिलेशनशिप करता है। So statistics is used in finding the relationship between the different economic factors, ठीक है। जो भी different economic factors होते हैं उनके बीच में ये क्या करता है, एक relationship करता है। So an economist may be interested in finding out what happened to the demand for a commodity and when its price increases or the decreases, okay। कोई भी इकोनॉमिक्स्ट होता है वो किस में इंटरेस्टेड होता है, वो इंटरेस्टेड होता है ये जानने के लिए कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड, किसी भी कमोडिटी की प्राइस क्या है, ओके। सो किसी भी कमोडिटी की प्राइस क्या है, वो प्राइस कब इंक्रीज़ हुई, कब डिक्रीज़ हुई, उसके अकॉर्डिंग प्राइस जो भी इंक्रीज़ हुई तो डिमांड में कितना ज़्यादा चेंजेस हुआ, वो उसके अकॉर्डिंग सारे फैक्टर्स को देखता है। सो और वुड दी कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज व्हेन दी एवरेज इनकम इंक्रीजेज, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। और वुड दी व्हाट हैपन जनरल प्राइस लेवल व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज, कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो रहा है तो प्राइस लेवल में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। सो सच क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड ओनली इफ देयर इज एनी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन दी factors, okay। So whether relationship exists or not can be easily verified by the statistical method, ठीक है, कि उन दोनों फैक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं, ये हम लोग डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि प्रोडक्शन ऑफ वीट हो रहा है और एंड द यूज़ ऑफ द मार्कर, सो देयर इज़ नो रिलेशनशिप। तो स्टैटिस्टिकल मेथड तभी यूज़ हो पाती है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स बताते हैं कि इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। So now the next one is that is it helps in the formulation of the plans and the policy. Helps in formulation of plan and policies, ठीक है। क्या हेल्प करता है, प्लान और पॉलिसीज में भी हेल्प करता है। So sometimes फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान एंड पॉलिसी रिक्वायर्ड दी नॉलेज ऑफ द फ्यूचर ट्रेंड, ठीक है। समटाइम क्या है, जो प्लान है और पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेशन, ये क्या चाहिए, फ्यूचर ट्रेंड पे एक इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक प्लानर हैज़ टू डिसाइड इन 2005 हाउ मच द इकॉनमी शुड प्रोड्यूस इन 2010। ये डिसाइड करता है कि 2005 में कि इकॉनमी को कितना ज़्यादा 2010 में प्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि अगर अभी प्लान करें कि इन फ्यूचर हमें कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, तो उसमें भी हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करें, क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम सारी इन्फॉर्मेशन को दे रहे हैं, ठीक है। सो स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है, इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ दी कि प्लान्स हम लोग कैसे फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाएं। जैसे अगर पॉवर्टी इंक्रीज़ हो रही है, 2018 में कितनी थी, 2021 में कितनी हो गई इन द नंबर्स,
सो पॉलिसीज़ हम लोग बनाएंगे कि 2025 तक हम कितना पॉपुलेशन को, पॉवर्टी को हम लोग कम कर सकें. तो स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो हेल्प इन दी फॉर्मुलेशन ऑफ द प्लान्स एंड दी पॉलिसीज. नेक्स्ट वन इज इट हेल्प इन इवैल्यूएशन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसीज. हेल्प इन इवैल्यूएशन of impact of policy, impact of policies, right? कह रहा है today we increasingly use statistics to analyze serious economic problem. ठीक है, हम लोग क्या है स्टैटिस्टिक्स को यूज़ कर रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए, सच एज राइजिंग प्राइसेस, जो भी प्राइस राइज कर रही हैं, ग्रोइंग पॉपुलेशन जो बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एक्सेट्रा, टू फाइंड मेजर्स दैट कैन सॉल्व सच प्रॉब्लम्स. ऐसे कौन से मेजर्स हैं जो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें. सो फर्दर इट ऑल्सो हेल्प्स टू इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज इन सॉल्विंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ठीक है, फर्दर ये क्या है, ये हेल्प करते हैं इवैल्यूएट करने के लिए जो भी पॉलिसीज़ हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो जो भी स्टैटिस्टिक्स है, तो पहले हम लोग प्रॉब्लम को जान जाते हैं और उन प्रॉब्लम के लिए हम लोग कौन से सॉल्यूशन, कौन सी पॉलिसीज़ को यूज़ कर सकते हैं और उसका इवैल्यूएशन भी देख सकते हैं कि क्या जो भी ये पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस्ड हुई हैं वो इतनी सक्सेसफुल हैं या नहीं, जो भी प्रॉब्लम्स और को हम लोग देख रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंटरसेक्टोरल एंड द इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन. Sectoral and intertemporal comparison. ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, स्टैटिस्टिक्स कॉम्प्रीहेंड द न्यूमेरिकल डेटा. स्टैटिस्टिक्स अंडरस्टैंड क्या करता है, कॉम्प्रीहेंड डेटा को करता है विद द हेल्प ऑफ थ्रू द इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन. सो इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, जो भी डिफरेंट सेक्शंस है सोसाइटी में, रूरल हो गया, अर्बन हो गया, रिच हो गया, पुअर हो गया, या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जो भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनके बीच में जो भी सेक्टोरल का बेसिकली कंपैरिजन उनके में भी हेल्प करता है. फॉर एग्जांपल एनालाइजिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम एनालाइज करने के लिए स्टैटिस्टिक्स वुड हेल्प टू टेल द मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्या हेल्प करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का, कि कितनी क्वांटिटी में अनएम्प्लॉयमेंट है अक्रॉस रूरल एंड अर्बन सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, रूरल और अर्बन सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में. So intertemporal comparison mean understanding of change in the magnitude of the problem over time. कि अंडरस्टैंडिंग ये करता है कि जो भी प्रॉब्लम की मैग्नीट्यूड था उसमें कितना ज़्यादा चेंजेस आया है. मेकिंग अ कंपैरिजन ऑफ द रूरल एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट इन द डिफरेंट टाइम पीरियड. ठीक है, ये कंपैरिजन करता है कि रूरल और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में डिफरेंट टाइम पीरियड में, मतलब टाइम के रिलेटेड बात करता है कि कितने टाइम पीरियड में कितने ज़्यादा चेंजेस आए हुए. ठीक है, सो ये होता है इंटरसेक्टोरल एंड द इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इंट्रोडक्शन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स. की स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है. ठीक है, importance of statistics. So the role of statistics is ever increasing in all the fields of the modern age. ठीक है, so जो statistics है वो हर एक फील्ड में क्या हो रहा है, उसका यूज़
फॉर एग्जाम्पल बिजनेस पॉलिसीज़ आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा। ठीक है, जो भी बिजनेस पॉलिसीज़ हैं वो किस पे फॉर्मुलेट होती है? ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा। जो भी पास्ट में डेटा है उनके बेसिस पे बिजनेस की पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट किया जाता है। वी कैन नॉट थिंक ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम विदाउट द इकोनॉमिक प्लानिंग विदाउट द स्टैटिस्टिक्स। कि इकोनॉमिक प्लानिंग को हम लोग बिना स्टैटिस्टिक्स के अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे पास कोई डेटा नहीं होगा हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है। जैसे हम लोग कोई भी डेटा में ले लेते हैं, वैल्यूज़ में ले लेते हैं, पॉवर्टी लास्ट ईयर इतनी थी, अभी इतनी है, तो जो वैल्यूज़ है तभी हम जान जाते हैं कि कितना ज़्यादा अगर पॉवर्टी इंक्रीज़ करी है या डिक्रीज़ करी है। सो विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिक्स वी कैन ईजिली फाइंड आउट, राइट। सो द इम्पॉर्टेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। सो फर्स्ट है दैट इज स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। की इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है? स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। So the number of economic problem can be understood by the use of statistics. ठीक है, डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम लोग समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करें। सो इट हेल्प इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी। ये क्या हेल्प करता है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को हम लोग फॉर्मुलेट करें। बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या हो जाती है, लाइक प्रोडक्शन, कंजप्शन, कैपिटल फॉर्मेशन और द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स इन द वेरियस पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स हैज़ बी डिस्कस्ड इन एज फॉलोज। तो स्टैटिस्टिक्स इन द कंजप्शन, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स इन कंजप्शन। स्टैटिस्टिक्स का कंजप्शन में क्या रोल है? So to obtain the knowledge of how different group of people spend their income from the statistics relating to the consumption, ये जानने के लिए कि जो different group of people हैं वो अपनी income को कितना spend कर रहे हैं। ठीक है, कोई rich high income people है, low income people है and the medium income people है, तो वो सारे people वो कितना अपनी income का spend कर रहे हैं for their कंजप्शन। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। सो द डेटा ऑफ कंजप्शन आर यूजफुल। जो डेटा है कंजप्शन का वो यूजफुल एंड हेल्पफुल इन प्लानिंग देयर बजट, एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन प्लानिंग देयर बजट को प्लान करने का एंड इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनकी इम्प्रूव भी हो जाएगी। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स इन प्रोडक्शन। Statistics in production. So the comparative study of the production process is done with the help of the study. ठीक है, जो भी comparative study है वो किसकी हेल्प से कंप्लीट हो सकती है? प्रोडक्शन की, with the help of the statistics. So the statistics of the production, जो statistics है प्रोडक्शन का, are very useful, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है and helpful और दी एडजस्टमेंट ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड कितनी होगी, सप्लाई उसकी कितनी है, डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी। मतलब स्टैटिस्टिक्स इन प्रोडक्शन की उस कमोडिटी की कितनी डिमांड है, क्योंकि सप्लायर और द प्रोड्यूसर उतनी ही कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है जितना अमाउंट ऑफ क्वांटिटी डिमांड है। ठीक है, तो जब ये पता चल जाएगा कितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली कमोडिटी की सप्लाई होगी और कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स इन डिस्ट्रीब्यूशन। Statistics in distribution. So statistical methods are used in solving the problem of distribution of national income among the various factors of production. ठीक है, जो भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं वो यूज़फुल होते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम
इन द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। आपको पता है दैट देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सो लैंड को इन रिटर्न रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलता है, कैपिटल इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स प्रॉफिट। तो इनके बीच में कैसे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सो इसमें भी क्या करता है स्टैटिस्टिक्स हेल्पफुल होता है, राइट। नेक्स्ट वन इज दैट इज स्टैटिस्टिक्स इन द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्लानिंग। Statistics in economic planning, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या है। सो इकोनॉमिक प्लानिंग इज डन टू अचीव सर्टेन टारगेट फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी यूजिंग स्कैर्स रिसोर्सेज ऑफ द नेशन, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे डन होती है, सर्टेन टारगेट फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी के ग्रोथ के यूजिंग स्कैर्स रिसोर्सेज, जो भी स्कैर्स रिसोर्सेज हैं उनका हम कैसे यूज़ करते हैं। सो स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन इवैल्यूएटिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम थ्रू द स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है। जो भी स्टैटिस्टिक्स है वो ये हेल्प करती है कि इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे, उसके डिफरेंट स्टेजेस, सबसे पहले प्लान करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर प्रॉपरली डिफरेंट मेंबर्स को एम्प्लॉय करना, फिर उनको डायरेक्ट करना, उनको कंट्रोलिंग करना, जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग है वो सारा कैसे किस किस डिफरेंट स्टेप्स पे जाएगा ये बताता है। सो स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन कंपेयरिंग द ग्रोथ रेट। स्टैटिस्टिक्स भी क्या हेल्प करता है कि ग्रोथ रेट को भी वो कंपेयर करता है, मतलब इस ईयर में कितना ग्रोथ हुआ, लास्ट ईयर से कितना ग्रोथ, तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ लास्ट ईयर 7.5 ग्रोथ था तो इस साल 9.5, अराउंड 2% ग्रोथ हुआ। तो ये किसके हेल्प से हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। सो इट हेल्प्स टू फॉर्मुलेट प्लान्स टू अचीव द प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव। ये फॉर्मुलेट क्या करता है, प्लान जो प्री डिटरमिनेट ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफिल करने के लिए। इट मेजर्स द सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ द प्लान। ये जो प्लान्स बनाए गए हैं वो कितना सक्सेसफुल है, वो कहाँ कहाँ पे फेल्योर हुआ, इनको डिस्कस करता है एंड अकॉर्डिंगली गाइड्स टू अप्लाई करेक्टिव मेजर, और उसके अकॉर्डिंग क्या उसके करेक्टिव मेजर्स होंगे वो उसको भी बताता है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस। Statistics in business. So statistics tool play a very important role in major business activities. Statistics बहुत important role play करता है. So the producer depends on the market research to estimate market demand and the market research is based on the statistics. ठीक है, जो प्रोड्यूसर किस पे डिपेंड होता है, मार्केट रिसर्च पे, ये जानने के लिए कि मार्केट में डिमांड कितनी है। मार्केट रिसर्च को करता है कि कितनी डिमांड है, कौन सी क्वांटिटी को, कौन से कमोडिटी को लोग डिमांड करें, इनका रिसर्च करने के लिए। सो द ट्रेडर डिपेंड हैवली ऑन द मेथड ऑफ द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू स्टडी दी मार्केट। जो भी ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, वो पूरा स्टैटिस्टिकल डेटा पे ही डिपेंडेंट होते हैं मार्केट को स्टडी करने के लिए। वो देखते हैं कि इस कमोडिटी की डिमांड क्या है, प्राइस पे इसका क्या इम्पैक्ट, प्राइस क्या होगी जो उस पर अनदर अफेक्ट करेगा, वो प्राइस को कितना रखिए जो मेरी ज़्यादा कमोडिटी की डिमांड होगी। फिर किस पे पूरा वो बेस्ड होता है, रिसर्च पे, मार्केट रिसर्च, और वो कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिकल टूल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिटेल एनालिसिस ऑफ द मनी ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस। जो भी मनी के ट्रांजेक्शन्स हैं, अबाउट द प्राइस, अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई, इनके लिए क्या वो हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। स्टैटिस्टिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, सो फॉर्मुलेशन ऑफ ए पॉलिसी इन्वॉल्व दी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब जब भी कोई पॉलिसी का फॉर्मुलेशन होगा उसमें स्टैटिस्टिक्स रिक्वायर्ड है। सो दैट फैक्ट रिलेटिंग टू द पॉपुलेशन, जो स्टेट है वो इंफॉर्मेशन लेता है पॉपुलेशन की, लिटरेसी की, एम्प्लॉयमेंट की, पॉवर्टी की, पर कैपिटा इनकम की। सो विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेथड एंड द प्रिंसिपल, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स को लेता है और उसके प्रिंसिपल्स को लेता है। सो इट हेल्प्स टू स्टेट टू अचीव द टारगेट विद द हेल्प ऑफ द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। अब ये सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करता है। उन प्रॉब्लम को टैकल करने के बाद वो ये देखता है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प होगा और ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है जो भी स्कैर्स रिसोर्सेज हैं। हमें पता है रिसोर्सेज आर स्कैर्स,
उन स्कैर्स रिसोर्सेज को कैसे ऑप्टिमली यूटिलाइज करके हम इकॉनमी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, ग्रोथ कैसे कर सकते हैं. सो इसमें भी क्या करता है, स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड ऑल्सो this is all about your class. So in the next class we will start the chapter 2, that is collection of data.